السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے ناول انکال کے چوتھے حصے کے ساتھ، جو کہ ماوری دنیا سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ فائٹنگ اور سسپینس سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کافرستان دارالحکومت کے ہوٹل ریم لینڈ کے ایک کمرے میں جولیا، صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل موجود تھے۔ وہ چاروں میک اپ میں تھے۔ انہیں یہاں پہنچے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ کاغذات کے مطابق وہ کاروباری افراد تھے اور نوادرات کا بزنس کرتے تھے۔ دارالحکومت میں ان کی آمد بھی بزنس کے سلسلے میں ہی تھی۔ چیف نے انہیں میٹنگ روم میں بلا کر کافرستان کے ایک اہم مشن کے بارے میں بریف کیا تھا۔ چیف کے کہنے کے مطابق کافرستان نے ایک بار پھر پاکیزہ کو نشانہ بنانے کے لیے کافرستان کے ایک گھنے جنگل میں میزائل اسٹیشن تیار کرنا شروع کر دیا تھا، جہاں وہ طاقتور ترین میزائل نصب کر کے پاکیزہ کے ایٹمی تسبیحات کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کافرستان کا یہ منصوبہ انتہائی خفیہ تھا اور اس کے لیے وہ دن رات کام کر رہا تھا۔ چیف کے کہنے کے مطابق اسے یہ اطلاع کافرستان کے فورن ایجنٹ نوٹرون نے دی تھی، جس نے اپنے ذرائع سے یہ معلومات حاصل کی تھی کہ اس میزائل اسٹیشن کو بلیک اسٹیشن کا نام دیا گیا تھا، اور یہ میزائل اسٹیشن کافرستان کے شمالی علاقے بھوربھم کے جنگل، جسے عام طور پر بلیک فارسٹ کہا جاتا ہے، کے وسط میں میزائل اسٹیشن تیار کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ میزائل اسٹیشن آخری مراحل میں تھا۔ اگلے چند روز تک نہ صرف میزائل اسٹیشن تیار ہو جاتا بلکہ وہاں طاقتور ایٹمی میزائل کی تنصیب بھی شروع ہو سکتی تھی۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں سے پاکیزہ کے کسی بھی تنصیب کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا، جس سے ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو گئے تھے، کیونکہ کافرستان کا یہ انتہائی خفیہ پلان تھا۔ اس سے پاکیزہ اس سے بین الاقوامی سطح پر بھی آواز نہ اٹھا سکتا تھا، اور نہ ہی کافرستان اس اقدام کو بین الاقوامی سطح پر چیلنج کر سکتا تھا۔ اس سے چیف نے نوٹرون کی اطلاع پر فوراً انہیں کال کیا اور اس کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی۔ نوٹرون کی اطلاع کے مطابق بھوربھم کے جنگل میں بننے والے اس میزائل اسٹیشن کی حفاظت کی ذمہ داری ریڈ پاور ایجنسی کی تھی، جو ایک طاقتور اور انتہائی باوسائل ایجنسی تھی، اور اس کی انتہائی تربیت یافتہ فورس بھوربھم کے اطراف اور جنگل میں پھیلی ہوئی تھی، تاکہ اگر کوئی غیر ملکی ایجنٹ اس طرف آئے تو انہیں نہ صرف روکا جا سکے بلکہ ان کا قلعہ کما بھی کیا جا سکے۔ چونکہ نوٹرون کو جنگل اور بھوربھم کے علاقے میں سب تفصیلات کا علم نہ تھا، اس سے اسے جو بھی معلوم ہوا تھا وہ سب اس نے چیف کو بتا دیا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ اس کے ساتھ ہی اکیلے میزائل اسٹیشن کو تباہ کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر عمران یا پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران یہاں آ جائے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن کر سکتے ہیں۔ چونکہ معاملہ گھمگیر ہے اور عمران بھی یہاں موجود نہ تھا، اس سے چیف نے ان چاروں کو فوری طور پر کافرستان روانہ ہونے کا حکم دیا تھا۔ چیف کے کہنے کے مطابق اس نے ان کے کافرستان جانے کے تمام انتظامات مکمل کر دیے تھے۔ انہیں دارالحکومت پہنچ کر اس ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ نوٹرون نے ان سے اسی ہوٹل میں آ کر ملنا تھا، کیونکہ بھوربھم کے علاقے بلیک فارسٹ اور میزائل اسٹیشن کے ساتھ ریڈ پاور ایجنسی کے بھی اس کے پاس کافی معلومات تھی جو وہ ان کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا۔ اس سے وہ سب طویل راستے سے سفر کرتے اور میک اپ بدلتے ہوئے یہاں پہنچے تھے۔ اس بار چیف نے ہمیں نہایت تیز رفتار سے مشن مکمل کرنے کی ہدایات دی ہیں، اور اس بار اس مشن کا ساری ذمہ داری ہم پر ہی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ عمران صاحب موجود نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ اچھا ہی ہے کہ عمران ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کی موجودگی میں ہم بس اس کے ساتھ دوڑتے بھاگتے ہی رہ جاتے ہیں اور اپنے طور پر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس بار اس کی غیر موجودگی میں ہم کھل کر کام کرنے کا موقع ملے گا اور ہم چیز سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوا سکتے ہیں، تنویر نے کہا۔ یہ مت بھولو کہ عمران پر اسرار حالات کا شکار ہے، ہم اس سے اختلاف کرنے کے بجائے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس بار اس کے مقابلے پر ایک بڑا شیطان کام کر رہا ہے، عمران اس کی قید میں ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہے۔ چلو نے تنویر کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کے لیے دعا گو ہوں اور مجھے ہے کہ یقین وہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے شیطان کو بھی فنا کر دے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ میں عمران کے لیے متفکر نہیں ہوں، میں نے بس ایک نظریاتی بات کی ہے کہ ہم نے یہ مشن اپنی مدد آپ کے تحت مکمل کرنا ہے، تنویر نے کہا۔ چیف نے ہمیں مشن کی تقریباً تمام معلومات فراہم کر دی ہے۔ چیف کے کہنے کے مطابق میزائل اسٹیشن بھوربھم کے بلیک فارسٹ میں موجود ہے۔ ہمیں کسی طرح وہاں پہنچنا ہے اور اس میزائل اسٹیشن کو تباہ کرنا ہے۔ چیف نے جب ہمیں ساری معلومات دے دی ہے تو ہمیں یہاں نوٹرون سے مزید کون سی معلومات لینے کا کہا گیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ چیف کے کہنے کے مطابق نوٹرون کے پاس ریڈ پاور ایجنسی کی معلومات ہے، جن سے ہمیں اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ ریڈ پاور ایجنسی نے بھوربھم اور بلیک فارسٹ کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں۔
हमें इन इंतजामात को मद्देनजर रखकर ही अपना काम करना होगा ताकि हम हर सूरत इन इंतजामात से बचकर मिसाइल स्टेशन तक पहुंच सकें और इसे तबाह कर सकें। जोले ने जवाब दिया तो कैप्टन शकील ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। अब न्यूट्रॉन का न जाने कब तक इंतजार करना पड़ेगा, तनवीर ने बेचैन से लहजे में कहा। इससे पहले कि इनमें मजीद कोई बात होती, उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी तो वो चौंक पड़े। कौन है? सफदर ने ऊंची आवाज में कहा। रूम सर्विस। बाहर से एक अनजान सी आवाज सुनाई दी। ये तो न्यूट्रॉन की आवाज नहीं है। बहरहाल सब होशियार रहे। मैं देखता हूँ, सफदर ने कहा। फिर वो उठा और तेज तेज चलता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि जोलिया और इसके साथियों ने फौरन मशीन पिस्टल निकालकर हाथों में ले लिए और अपनी पोजीशनें संभाल ली। सफदर ने मुड़कर उनकी तरफ देखा और फिर उन्हें तैयार देखकर उससे इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया और दरवाजे का लॉक खोल दिया। उसे हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला तो बाहर वाकई एक वेटर मौजूद था। वेटर एक ट्रॉली लाया था। ट्रॉली में चाय का सामान और स्नैक्स रखे हुए थे। ये किसका ऑर्डर है? हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया, सफदर ने कहा। स्पेशल ऑर्डर है जनाब, वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट देखकर सफदर कुछ सोचकर एक तरफ हट गया तो वेटर ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर आ गया। सफदर ने दरवाजा बंद कर दिया। वेटर ट्रॉली धकेलता हुआ मेज के पास आया और फिर ट्रॉली रोककर वो ट्रॉली से सामान उठाकर मेज पर रखने लगा। सबकी नजर उस पर जमी हुई थी। किसने दिया है स्पेशल ऑर्डर? सफदर ने उसके करीब आकर कदरे सख्त लहजे में कहा। स्पेशल ऑर्डर देने वाला अपना नाम नहीं बताया करते। बहरहाल आपके लिए पैगाम है कि आप 1 घंटे के बाद होटल छोड़कर होटल के अकब में पहुंच जाएं। होटल के अकब में स्याह रंग की एक बंद बॉडी वाली वैन है। इसका अगवी दरवाजा खुला होगा। आपको इस वैन में सवार होना है। वैन आपको लेकर यहाँ से निकल जाएगी और बॉस के महफूज ठिकाने तक पहुँचा देगी। मेरे बॉस से मुराद न्यूट्रॉन है, वेटर ने धीमी आवाज में कहा तो उसके मुंह से न्यूट्रॉन का नाम सुनकर उनके चेहरों पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। तुम तो न्यूट्रॉन के साथ ही हो, तन्वीर ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। इसीलिए तो यहाँ मौजूद हूँ और आपको स्पेशल ऑर्डर सर्व कर रहा हूँ, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा तो उन्होंने अस्मात में सर हिला दिए। इस कदर खुफिया तरीका क्यों? क्या यहाँ कोई खतरा है? कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, यहाँ हालात बेहद सख्त हैं। हर तरफ रेड पावर फोर्स फैली हुई है जो हर नए आने वाले खास तौर पर गैर मुल्कियों की कड़ी चेकिंग कर रही है। उनके पास जदीद तरीन मेकअप वॉशर भी है और डिजिटल कैमरे भी, जिनसे किसी भी किस्म का मेकअप छुपा नहीं रह सकता है। वो अभी बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट की चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और उनके यहाँ पहुँचने से पहले आपको यहाँ से निकाल लिया जाएगा, नौजवान ने जवाब दिया। अगर यहाँ इतना ही खतरा है तो फिर 1 घंटे के बाद क्यों हम अभी यहाँ से निकल जाते हैं? तुम हमें न्यूट्रॉन के ठिकाने के बारे में बता दो, हम अलग अलग रास्तों से होते हुए वहां पहुंच जाएंगे, जोलिया ने कहा। नहीं, यहाँ कोई रास्ता सेफ नहीं है। बॉस को एक खास आदमी है जिसका नाम, असल नाम तो कुछ और है, लेकिन वो कलंदर कहलाना पसंद करता है और बॉस भी उसे कलंदर ही कहते हैं। वो चंद ऐसे रास्ते जानता है जहाँ पर खतरा नहीं है। वो उन्हीं रास्तों से आपको खास ठिकाने पर पहुंचा सकता है, नौजवान ने कहा। तुम्हारा क्या नाम है? सफदर ने पूछा। मोहसिन अली, नौजवान ने कहा। तो क्या हमें अब 1 घंटा यहीं रुकना है? तनवीर ने कहा। हाँ, यहाँ मेरे साथ और भी अफराद मौजूद है जो होटल के हर हिस्से में फैले हुए हैं। जब तक कलंदर वैन लेकर नहीं आ जाता, आप सबकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, नौजवान ने जवाब दिया। तो क्या कलंदर की वैन में हम सब साथ हमारे साथ होंगे? कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, हम बाद में आएंगे, लेकिन आप बेफिक्र है। कलंदर इंतहाई जिम्मेदार और दिलेर आदमी है। वो आपको आसानी से यहाँ से निकाल ले जाएगा, मोहसिन अली ने जवाब दिया। फिर वो मुड़ा और तेज तेज चलता हुआ बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसे दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। इस आदमी के कहने के मुताबिक रेड पावर एजेंसी की पावर फोर्स पूरे शहर में फैली हुई है और कड़ी चेकिंग कर रही है। इसका मतलब ये है कि रेड पावर एजेंसी को हमारी आमद की इत्तला मिल चुकी है, जो इस कदर कड़ी चेकिंग कर रही है, सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, वाकई ये बात अजीब है कि इस एजेंसी को हमारी आमद की इत्तला मिल चुकी है, जबकि हम नहायत खुफिया तौर पर पाकिस्तान से रवाना हुए थे और हमने जहाँ तक पहुँचने के लिए तफरीरी सफ़र भी कर लिया था। पूरे रास्ते में हम चौकन्ना थे और हमें किसी भी मुकाम पर इस बात का शुबा नहीं हुआ था कि हम पर नजर रखी गई है, जोले ने होंठ भेजते हुए कहा। तो भी उन्हें कैसे पता चल गया कि हम जाएं और अब वो हमारी तलाश में लगे हुए हैं? तनवीर ने कहा। मोहसिन अली ने हमसे ये नहीं कहा कि वो हमारी ही तलाश कर रहे हैं। उसे ये कहा है कि यहाँ आने वाले हर नए आदमी की चेकिंग की जा रही है, खासतौर पर गैर मुल्कियों की। हो सकता है उन्हें किसी और की तलाश हो, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, ये भी मुमकिन है। अगर ऐसी बात होती तो न्यूट्रॉन हमें इस तरह खुफिया तौर पर यहाँ से निकलने का पैगाम न भिजवाता। हो सकता है कि इसे इस बात की भी इत्तला मिली हो कि पावर फोर्स हमारी ही तलाश में है, सफदर ने कहा। तो फिर बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि रेड पावर एजेंसी को इस बात का इल्म कैसे हुआ कि हम जहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पहुँचने वाले हैं, तनवीर ने कहा। ये तो सोचने की बात है। कहीं ना कहीं से तो हमारे बारे में कोई बात लीक आउट हुई है, जो रेड पावर एजेंसी तेजी से हरकत में आ गई है, सफदर ने कहा।
انہوں نے چائے پی اور سنیکس کھائے اور پھر وہ انتظار کرنے لگے۔ انہوں نے 1 گھنٹہ اسی کمرے میں گزارا اور پھر 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک پڑے۔ کون ہے؟ صفدر نے اونچی آواز میں کہا۔ روم سروس۔ باہر سے اسی نوجوان محسن علی کی آواز سنائی تو صفدر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر واقعی وہی ویٹر محسن علی موجود تھا۔ صفدر نے راستہ دیا تو وہ اندر آ گیا۔ کلندر وین لے کر پہنچ چکا ہے، آپ 10-10 منٹ کے وقفے سے باہر نکلیں گے اور وین میں پہنچ جائیں گے۔ میں نے آپ کے لیے ہوٹل کا عقبی راستہ کھلوا دیا ہے، اس لیے آپ کو یہاں سے نکلنے اور وین تک پہنچنے میں وقت کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ محسن علی نے میز پر پڑے ہوئے خالی برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا۔ وین کا رنگ اور اس کا نمبر تو بتاؤ، جولیا نے کہا۔ سیاہ رنگ کی بند باڈی والی وین ہے، محسن علی نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے وین کا رجسٹریشن نمبر بھی بتا دیا۔ اسے جلدی جلدی سامان سمیٹا اور پھر ٹرالی دھکیلتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ محسن علی کے جاتے انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور پھر سب سے پہلے تنویر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور 4 لمبے تڑنگے اور نہایت طاقتور آدمی اچھل کر اندر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ خبردار، جہاں ہو وہیں رہو ورنہ بھون کر رکھ دیں گے، ان میں سے ایک آدمی نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ ان چاروں افراد کو اس طرح اندر آتے دیکھ کر وہ سب جیسے اپنی جگہوں پر ساکت ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم اور اس طرح اندر آنے کا مطلب؟ تنویر نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے انتہائی تلخ اور سخت لہجے میں کہا۔ ہمارا تعلق پاور فورس سے ہے، اس آدمی نے اس طرح چیختے ہوئے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ تمہارا تعلق کس ایجنسی یا کس فورس سے ہے، میں پوچھ رہا ہوں تم یہاں اس طرح کیوں آئے ہو؟ کیا یہاں قائم ملکیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ تم جانتے نہیں کہ ہمارا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے اور ہم گریٹ لینڈ سے یہاں بزنس کے سلسلے میں آئے ہیں۔ تنویر نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ تم کون ہو اور کیا کرنے آئے ہو اس کے بارے میں ابھی پتہ چل جائے گا، اسی آدمی نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیا پتہ چل جائے گا؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ ہمارا تعلق کسی عسکریت پسند تنظیم سے ہے یا ہم کرمنل ہیں جو تمہارے ساتھ اس انداز میں پیش آ رہے ہو؟ کہ تمہارے ملک کا یہی قانون ہے کہ ہم جیسے غیر ملکی بزنس مین سے اس انداز میں پیش آیا جائے؟ صفدر نے آگے آ کر غصیلے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، تم سب خاموش ہو جاؤ اور ورنہ ہم ٹریگر دبا دیں گے اور تم سب کے لاشیں گر جائیں گی، اسی آدمی نے کہا۔ یہ تو زور زبردستی والی بات ہو گئی، ٹھہرو میں ابھی اپنے سفارت خانے میں بات کرتی ہوں، جولا نے کہا اور اپنے ہینڈ بیگز کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے اس بولے والے نے جولا کی طرف ایک فائر کر دیا۔ گولی زائیں کی آواز کے ساتھ جولا کے عین سر کے قریب سے گزرتی چلی گئی اور جولیا وہیں رک گئی۔ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلی تو اس بار گولی ٹھیک تمہارے سر میں گھس جائے گی، اس آدمی نے غراتے ہوئے کہا۔ یہ سب تم اچھا نہیں کر رہے ہو، ہماری بھی عزت ہے، ہم بھی اس ملک کے باعزت شہری ہیں، تمہارے ملک سے باقاعدہ ویزا لے کر یہاں بزنس کے لیے آئے ہیں، پھر تم ہمارے ساتھ اس قدر ناروا سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ کیپٹن شکیل نے احتجاج بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتے اسی لمحے بولے والے آدمی کے جیب میں موجود سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ چونک پڑا۔ ان پر نظر رکھو، اگر یہ کوئی حرکت کرے تو انہیں گولی مار دینا، اس آدمی نے کہا اور ساتھ ہی اس نے جیب سے جدید سا کا سیل فون نکال لیا۔ یس میڈم، دھارو بول رہا ہوں، اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ یس میڈم، چاروں اپنے کمرے میں ہی موجود ہیں، 3 مرد ہیں جبکہ ایک عورت ہے اور یہ چاروں گریٹ لینڈ کے میک اپ میں ہیں، اس آدمی نے کہا اور میک اپ کا سن کر وہ چاروں چونک پڑے۔ یس میڈم، اوکے میڈم، دھاروف نے کہا اور پھر وہ چند لمحے دوسری طرف کسی میڈم سے بات کرتا رہا، پھر اس نے اوکے کہا اور سیل فون سے کان ہٹا کر اس کا بٹن پریس کیا اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ یہ تم کس میڈم سے بات کر رہے ہو اور تم نے اپنی میڈم کو یہ کیوں کہا ہے کہ ہم گریٹ لینڈ کے افراد کے میک اپ میں ہیں؟ چولے نے گھورتے ہوئے کہا۔ میں اپنی میڈم مہا لکشمی سے بات کر رہا تھا جو پاور فورس کی نئی سربراہ ہیں، دھارف نے جواب دیا۔ کہاں ہے تمہاری میڈم؟ میری سے بات کراؤ ابھی اور اسی وقت۔ میں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہاں آنے والے غیر ملکیوں سے ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ تم لوگ اس طرح بغیر اجازت ہمارے کمرے میں گھس آئے ہو اور ہمیں گن پوائنٹ پر لے کر کھڑے ہو گئے ہو؟ چولے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بے فکر رہو، میڈم نے تم سب کو اپنے پاس بلایا ہے اور اب ہم تمہیں میڈم کے پاس لے جائیں گے، دھارف نے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتے دھارف نے اچانک ہاتھ میں پکڑی کوئی چیز پوری قوت سے زمین پر مار دی۔ اس سے پہلے کہ جولا اور اس کے ساتھی کچھ سمجھتے اچانک ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور دھماکہ ہوتے جولا کو جو محسوس ہوا جیسے کسی اندھے کی طاقت نے یکلگ اس کی گردن پکڑ لی ہو۔ جولا کو جھٹکا لگا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی کئی قدم پیچھے ہٹی اور پھر اسے اپنے دماغ پر اندھیرے کی یلغار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے سر جھٹک کر دماغ پر چھانے والا اندھیرا دور کرنے کی کوشش کی لیکن لا حاصل۔ دھماکے کے بعد جولا کو نہ کوئی بو محسوس ہوئی اور نہ ہی کوئی دوسرا احساس، بس ایک لمحہ مزید گزرا ہوگا کہ وہ لہراتی ہوئی فرش پر پڑے ہوئے قالین پر گرتی چلی گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے اپنے ساتھیوں کو گرنے کی آوازیں بھی سنی تھی۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا تو کرنل بھرت راج جو اپنے آفس میں میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا، یکلگ چونک پڑا۔
दरवाजा खुलने की आवाज के उससे उसके चेहरे पर वह गुस्सा उभर आया था, लेकिन उसने दरवाजा खोलने के बाद महालक्ष्मी को अंदर आते देखा तो उसके चेहरे के कदोकाल नरम पड़ गए। तुम हमेशा इसी तरह धमाके से दरवाजा खोलकर आती हो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक मेरे सर पर बम मार दिया हो। कर्नल भरतराज ने मुस्कुराते हुए कहा तो महालक्ष्मी बेइख्तियार मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और आदात के मुताबिक कर्नल भरतराज से इजाजत लिया बगैर मेज की दूसरी तरफ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। मैं ब्लास्ट कर लूं और जहां जाती हूं ऐसे ही धमाका कर जाती हूं, ताकि सबको पता चल सके कि आने वाली ब्लास्ट कल है, महालक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा तो कर्नल भरतराज बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मेरी हालत पर तो रहम किया करो, तुम जानती हो कि मैं वैसे ही कमजोर दिल का मालिक हूँ। तुम इस तरह दरवाजे पर धमाके करती अंदर आओगी तो मेरा दिल ही धड़कना भूल जाएगा। कर्नल भरतराज ने कहा तो महालक्ष्मी हंस पड़ी। तुम्हारा दिल तो मुझे देखकर भी धड़कना भूल जाता है, महालक्ष्मी बर्जस्ता कहा तो उसके बर्जस्ता जवाब पर कर्नल भरतराज बेइख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ा। ये तो तुम्हारे हुस्न का कसूर है, मैं तो क्या जो भी तुम्हें देखता है इसके दिल की धड़कन या तो तेज हो जाती है या वो धड़कना ही भूल जाता है। कर्नल भरतराज ने जवाब दिया तो महालक्ष्मी बेइख्तियार खिलखिलाकर हंसना शुरू हो गई। काफी खुश दिखाई दे रही हो, कोई कारनामा सर अंजाम देकर आई हो क्या? कर्नल भरतराज ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। मेरे पास तुम्हारे लिए कई अहम खबरें हैं कर्नल भरतराज, सुनोगे तो हैरत से बेहोशी हो जाओगे, महालक्ष्मी ने हंसते हुए कहा। अरे बाप रे, मैं पहले ही तुम्हारे हुस्न के ताप न लाते हुए अपने होशो हवास में नहीं रहता, अब तुम खबरें सुनाकर मुझे बेहोश करना चाहती हो तो फिर तो मुझे जल्द से जल्द अपने लाइफ का बीमा करा लेना चाहिए, कर्नल भरतराज ने कहा तो महालक्ष्मी एक बार फिर हंस पड़ी। भीमा वो क्यों, महालक्ष्मी ने चूंक कर कहा। बार बार बेहोश होना खतरनाक बीमारी होती है, किसी दिन ये जान भी ले सकती है और जान निकलने से पहले लाइफ इंश्योरेंस करा लेना जरूरी होता है, ताकि बाद में तुम जैसे हसीनाओं के अखराजात तो पूरे होते रहें, वरना तुमने यही कहना है कि जाना था तो कुछ तो मेरे नाम कर जाते, कर्नल भरतराज ने मुस्कुराते हुए कहा तो महालक्ष्मी एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हारी हर चीज पर मैं पहले ही काबिज हूँ, अब वाकई तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मरने से पहले वाकई अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा लो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीमा पॉलिसी से मैं तुम्हारे मरने की रसूमात तो अदा कर सकूं, वरना सब नहीं एतराज करना है कि तुम्हारे सबसे चहेती गर्लफ्रेंड होने के बावजूद मैं तुम्हारे मरने पर ना अफसोस किया और ना मौत की रसूमात अदा की, महालक्ष्मी ने हंसते हुए कहा तो कर्नल भरतराज एक बार फिर हंस पड़ा। तुम तो मेरे मरने के बाद भी मेरा जूता ही मेरे सर पर मारने का सोच रही हो, कर्नल भरतराज ने कहा तो महालक्ष्मी की हंसी तेज हो गई। जमाना ही ऐसा है डियर, जिसका जूता उसका सर, महालक्ष्मी ने कहा तो कर्नल भरतराज एक तवील सांस लेकर रह गया। अच्छा अब बताओ क्या खबरें हैं, कर्नल भरतराज ने संजीदा होते हुए कहा। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि गुरु महाराज से मेरी बात हुई है, मैंने इनसे कहा था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान के यहाँ आने का अंदेशा है, या तो वो उन्हें पाकिस्तान में ही रोकने के लिए कोई इकदाम करे या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान को अपनी सफली ताकतों से पाकिस्तान में हलाक करा दे, ताकि इनका पाकिस्तान में आने का अंदेशा ही न रहे। और अगर ऐसा करना इसके लिए मुश्किल है तो वो किसी ऐसी सफली ताकत को मेरे साथ कर दे ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के एक एक हरकत पर नजर रख सके और इनके हर मूवमेंट के बारे में मुझे खबर देती रहे। गुरु महाराज ने दोनों काम ही एक साथ कर डाले थे, उसे अपनी चंद सफली ताकतों को जाइयों को मेरे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का रास्ता रोकने और इन्हें हलाक करने के लिए पाकिस्तान भेज दिया था और एक महान ताकतों के मालिका को जाई को इंसानी रूप में मुझे भी सौंप दिया था। इस कोजाई का नाम हमाशी है, जो इंसानी रूप में मेरे साथ रहती है, वो मुझे हर बात तफसील से बता सकती है और मुश्किल वक्त में मेरी मदद भी कर सकती है, इसलिए मैंने इसे अपना नंबर 2 बना लिया है और वो हर वक्त मेरे साथ रहती है। उसकी मदद से मुझे पता चला कि गुरु महाराज ने पाकिस्तान में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान को हलाक करने के लिए जिन कुजाइयों को भेजा था, उन्होंने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हलाक करने और उनका रास्ता रोकने की बेहद कोशिश की थी, लेकिन इनकी वादे रोशनी की ताकतें कर रही हैं, इसलिए कोजाइयाँ ना तो इनके करीब जा सकी और ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकी। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान इमरान के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए एक नेक बुजुर्ग के पास जाना चाहते थे और कोजाइयों की कोशिश थी कि उन्हें उस नेक बुजुर्ग से ना मिलने दिया जाए, ताकि वो इन्हें किसी भी सूरत में ये न बता सके कि इमरान कहाँ और किस हालत में है। लेकिन कोजाई ने जब उन्हें हलाक करने की कोशिश की तो रोशनी की ताकतें जारी हालत में उनकी मदद को पहुँच गई और उन्होंने ना सिर्फ इमरान को कोजाइयों के हमले से बचा लिया बल्कि कोजाइयों को भी दूर भगाने पर मजबूर कर दिया। बहरहाल इमरान इस नेक बुजुर्ग तक पहुँच गए और इस तरह इन्हें इस बात का इल्म हो गया कि इमरान कहाँ और किस हालत में है। वहाँ क्या बातें हुई और क्या प्लानिंग की गई इसके बारे में तो हमाशी को पता नहीं चल सका, लेकिन हमाशी ने मुझे ये बताया कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस पर वो मुसलसल नजर रखे हुए हैं और अगर पाकिस्तान से पाकिस्तान आए तो वो इनके बारे में मुझे सब कुछ बता देगी। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ गुरु महाराज ने मुझे कॉल करके खसूसी तौर पर एक स्क्वाड मंगवाया था।
وہ گھنائے جنگل میں موجود وحشتناک قبیلے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ گھنائے جنگل کے قبیلے کا سردار کوبلا اس کے خلاف کام کر رہا ہے اور اس کے پاس ایک ساحر کے حنوط شدہ لاش موجود ہے جسے وہ زندہ کر کے گرو مہاراج اور اس کے کاز کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ گرو مہاراج نے مجھے حکم دیا کہ مسلح فورس کو بھیج کر گھنائے جنگل میں موجود دشنام قبیلے کو مکمل طور پر ختم کر دوں اور کوبلا کے پاس موجود اس تاج کو حاصل کر کے اسے پہنچا دوں۔ کیونکہ یہ گرو مہاراج کا حکم تھا، اس سے مجھے فوراً اس پر عمل کرنا پڑا۔ میں نے 10 گن شپ ہیلی کاپٹر کا اسکواڈ فوری طور پر گھنائے جنگل کی طرف روانہ کر دیا ہے، جس کے کمانڈ اسکواڈرن لیڈر کیپٹن دلیپ کر رہا ہے۔ میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ گھنائے جنگل میں موجود دشنام قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور سارے قبیلے کو نیست و نابود کر دے، اور جب سارا قبیلہ ختم ہو جائے تو وہ ٹروپروس کے نیچے اتارے اور قبیلے میں اس لاشوں کو تلاش کرے جس کی گرو مہاراج کو ضرورت ہے۔ اب تک وہ یقیناً گھنائے جنگل میں پہنچ چکا ہوگا اور اسے دشنام قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجانی شروع کر دی ہوگی۔ اس کے علاوہ عمران کے بارے میں خبر ملی ہے کہ ایک تاریک کنویں میں زنجیروں میں باندھ کر رکھا گیا تھا۔ اسے حیرت انگیز طور پر نہ صرف زنجیریں توڑ دی ہیں بلکہ وہ 500 فٹ سے زیادہ گہرے کنویں سے نکل بھاگا ہے۔ کجائیوں نے اس کے دماغ پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس سے اس کے ذہن میں کوئی مقدس نام اور مقدس کلام نہ آ رہا تھا، لیکن پھر اچانک لاشعوری طور پر عمران کے زبان پر مقدس نام آ گیا اور پھر اس نے اس زور شور سے قدم مقدس کلام میں اضافہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہاں پہرا دینے والی کجائیاں ڈر کر بھاگ گئی۔ عمران کنویں سے نکلا اور پھر نہ جانے جنگل میں جا کر کہاں گم ہو گیا۔ کجائیاں اسے ہر طرف تلاش کرتی پھر رہی ہیں، لیکن تاحال عمران کا ابھی تک کچھ علم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں موجود ہے۔ ماں لکشمی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ تو ساری کی ساری بری خبریں ہیں۔ کجائیاں پاکیزہ جا کر نہ تو پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ہلاک کر سکی ہیں اور جو عمران کو انہوں نے قید کیا ہوا تھا اس کی بھی حفاظت وہ نہ کر سکی، اور وہ انہیں جلد دے کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کرنل بھتراج نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، ہاں یہ ساری بری خبریں ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی جہاں مرضی جا کر چھپ جائیں، لیکن وہ میرے ساتھ موجود کوجائی سے خود کو نہ چھپا سکیں گے۔ وہ جہاں بھی جائیں گے اور جس حلیے میں بھی ہوں گے، کوجائی ہماشی مجھے اس کے بارے میں بتا دے گی اور میں مسلح افراد کو وہاں بھیج کر ان سب کا خاتمہ کر دوں گی۔ عمران کو ہلاک کرنے سے مجھے گرو مہاراج نے منع کر رکھا ہے، ورنہ اسے بھی ہلاک کرنا میرے لیے مشکل ثابت نہ ہوتا۔ مجھے اس کے بارے میں بھی ہماشی نے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ روشن دنیا کا ایک نمائندہ ہے جو اسے اپنی روحانی طاقتوں سے اٹھا کر گھنائے جنگل میں لے گیا ہے۔ چونکہ عمران اس وقت گھنائے جنگل میں اس نیک آدمی کے ساتھ ہے، اس لیے ہماشی کو وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن اسے عمران کو اسی جنگل سے محسوس ہو رہی ہے۔ ایک بار عمران اس نیک آدمی سے دور ہٹ جائے تو ہماشی اسے آسانی سے دیکھ لے گی اور پھر میں اس کے ذریعے دوسری کوجائیوں کو اطلاع دے کر اسے پھر سے پکڑا لوں گی، اور کوجائیاں اس بار اسے ایسی جگہ لے جا کر قید کریں گی جہاں سے وہ آزاد ہونے کا سوچ بھی نہ سکے گا۔ اور دوسری طرف ہماشی کے کہنے کے مطابق پاکیزہ سیکرٹ سروس کے 4 افراد جن میں 3 مرد اور 1 عورت شامل ہیں، کافرستان آنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ میک اپ بدل بدل کر دوسرے ممالک میں ہوتے ہوئے کافرستان پہنچیں گے اور ان کے پاس ایسے سفری دستاویزات موجود ہوں گے جس سے وہ خود کو نہ صرف بزنس مین ثابت کر سکیں بلکہ ان کے پاس ورلڈ ٹور کا اجازت نامہ بھی ہوگا۔ وہ جیسے کافرستان پہنچیں گے، ہماشی ان کے بارے میں مجھے اطلاع کر دے گی اور پھر میں ان کے سرکوبی کے لیے فورس بھیجوں گی۔ میں انہیں زندہ گرفتار کراؤں گی تاکہ انہیں اپنے ہاتھ سے ہلاک کر سکوں۔ مہا لکشمی نے کہا، کیا اب بھی ہماشی تمہارے ساتھ ہے؟ کرنل بھتراج نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ ظاہری حالت میں کم اور غیبی حالت میں زیادہ رہتی ہے، لیکن جب بھی اسے آواز دیتی ہوں تو وہ میرے سامنے فوراً ظاہر ہو جاتی اور میرے ہر حکم پر عمل کرتی ہے۔ مہا لکشمی نے کہا، بہت خوب، کیا تم اسے یہاں بھی بلا سکتی ہو؟ کرنل بھتراج نے کہا، تم شاید اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ مہا لکشمی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے سفری ذریعات کے بارے میں سنا تو بہت ہے لیکن آج تک دیکھا نہیں ہے۔ اگر سچ میں تمہارے پاس کوئی سفری طاقت موجود ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اسے بلاؤ۔ میں اسے ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کرنل بھتراج نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، میں اسے بلا تو سکتی ہوں لیکن… مہا لکشمی نے کہا اور پھر لیکن کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا؟ بھتراج نے کہا، وہ ایک سفری طاقت ہے اور سفری طاقتوں کو بھیڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھیڑ میں وہ انسانی خون مانگتی ہیں جنہیں ہر وقت دینا پڑتا ہے۔ جب تک وہ غائب ہے اسے نہ تو بھوک لگتی ہے اور نہ پیاس، لیکن جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو اس کی حالت عام انسانوں جیسی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے خون مانگتی ہے اور جب تک وہ شکم سیر ہو کر خون نہ پی لے اسے سکون نہیں آتا۔ تم اگر اسے دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک بھرا ہوا خون کا مٹکا منگوا لو۔ جب وہ تمہارے سامنے آئے تو اسے وہ مٹکا دے دینا، وہ تمہاری بھی دوست بن جائے گی، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے تو وہ پھر بھیڑ کے طور پر تمہیں بھی خون پی سکتی ہے۔ مہا لکشمی نے کہا تو اس کی بات سن کر کرنل بھتراج کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ کہا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اگر میں نے اسے خون سے بھرا مٹکا نہ دیا تو میرا ہی خون پی جائے گی؟ کرنل بھتراج نے خوف بھرے لہجے میں کہا، ہاں یہ بالکل درست ہے۔ مہا لکشمی نے کہا، ارے باپ رے، پھر میں اس کے لیے خون سے بھرا ہوا مٹکا کہاں سے لاؤں؟ رہنے دو، میں پھر اسے کبھی دیکھ لوں گا۔
कर्नल भरतराज ने कहा तो महालक्ष्मी उसका खौफ देखकर बे इख्तियार खिलखिलाकर हंसना शुरू हो गई। लेकिन तुम भी तो उसे बुलाती हो, जब वो तुम्हारे सामने आती है तो क्या वो तुमसे खून की भेंट मांगती है? कर्नल भरतराज ने चुंकते हुए कहा, मेरा इससे मुआहदा हो चुका है। मैंने इससे वादा कर रखा है कि खून से भरा हुआ एक मटका मैं इसे सुबह और एक शाम को दिया करूंगी, और मैं ऐसा ही करती हूँ। हर सुबह मैं इसे खून से भरा हुआ एक मटका देती हूँ और एक शाम को। इसके अलावा मुझसे भेंट नहीं मांगती। महालक्ष्मी ने कहा, दो वक्त खून से भरा हुआ मटका तुम कहाँ से लाती हो, और वो खून किसका होता है? कर्नल भरतराज ने पूछूं कर कहा, हमाशी सिर्फ इंसानी खून पसंद करती है। खून का एक मटका भरने के लिए मुझे 100 पाउंड खून की जरूरत होती है, जो जाहिर में ब्लड बैंक से ही हासिल करती हूँ। मैंने अपने चंद साथियों को खून जमा करने के लिए लगाया हुआ है। वो मुख्य मुख्तलिफ हिस्से से खून के 200 बैग हासिल करते हैं, जो मुझ तक पहुँचाते हैं, और मैं सारा खून 2 मटकों में भरकर महाशी को दे देती हूँ। और बस, महालक्ष्मी ने जवाब दिया, तुम्हारे साथी ब्लड बैंकों से खून हासिल करते हैं तो इन्हें हैरानी नहीं होती कि तुम रोजाना 200 बैग खून का क्या करती हो? कर्नल भरतराज ने हैरत से कहा, इनके सरों पर हमाशी का कब्जा। इन्हें ऐसा कुछ सोचने की जरूरत ही पेश नहीं आती। वो वही करते हैं जो हमाशी इनसे करना आना चाहती है। इन बेचारों को तो पता भी नहीं होता कि वो कब किस ब्लड बैंक में गए हैं और कब वहां से गन पॉइंट पर ब्लड से भरे हुए बैग उठाकर फरार हो गए थे। पूरे मुल्क में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है कि चंद नामालूम अफराद ब्लड बैंकों से हमले कर रहे हैं और वहां से ब्लड बैग उठाकर भाग रहे हैं। महालक्ष्मी ने जवाब दे तो कर्नल भरतराज एक तवील सांस लेकर रह गया। लेकिन उसे लम्हे महालक्ष्मी ने बेइख्तियार जोर जोर से खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दिया। तो कर्नल भरतराज चुनकर उसकी तरफ देखने लगा। अब क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? कर्नल भरतराज ने हरे भरे लहजे में कहा, मैं तुम जैसे अहमक की माकत पर हंस रही हूँ। महालक्ष्मी ने कहा तो कर्नल भरतराज के चेहरे पर जकला गुस्से के तासुरात नमूदार हो गए। ये तुम क्या बकवास करी हो? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे अहमक कहना शुरू कर दो। कर्नल भरतराज ने गड़ाते हुए कहा तो महालक्ष्मी हंस पड़ी। ओ, तुम संजीदा हो गए? मैं तो मजाक कर रही थी डियर। मुझे तुम इसलिए हंसी आ रही थी कि मैं इतनी देर से तुम्हारे सामने बकवास करती जा रही हूँ और तुम उसे सच समझ रहे हो। महालक्ष्मी ने कहा तो कर्नल भरतराज चौंक पड़ा। कैसी बकवास? कर्नल भरतराज ने चूंक कर कहा, यही कि मेरे साथी जो सबसे ताकत हमाशी है वो खून पीती है, और मैं इसे रोजाना 200 पैकेट खून 2 मटकों में भरकर पिलाती हूँ। महालक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा तो कर्नल भरतराज चौंक पड़ा और हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? कर्नल भरतराज ने कहा, मैं इसे मजाक में कह रही थी डियर। हमाशी इंसानी खून की प्यासी जरूर है और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए इंसानी खून भी पीती है, लेकिन उसके लिए खून मुझे मुहैया नहीं करना पड़ता है, और न ही मेरे साथी इसके लिए ब्लड बैंक से जाकर खून हासिल करते हैं। महालक्ष्मी ने कहा तो कर्नल भरतराज एक तवील सांस लेकर रह गया। तो तुम ये सब झूठ बोल रही थी? कर्नल भरतराज ने कहा, हाँ, मैं देखना चाहती थी कि तुम मेरी बातों पर कितना यकीन करते हो। महालक्ष्मी ने कहा, हूँ, तुम जानती हो कि मैं तुम पर बेहद ट्रस्ट करता हूँ और तुम्हारी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता हूँ। कर्नल भरतराज ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, हाँ, जानती हूँ। मैं हमाशी के लिए मुझे खुद मुहैया करने की कोई पाबंदी नहीं है। वो अपनी ये जरूरत खुद पूरी करती है। गुरु महाराज ने उसे मेरे अहकाम पर अमल कराने के लिए मेरे पास भेजा है, और बस। महालक्ष्मी ने संजीदा होते हुए कहा तो कर्नल भरतराज ने इस बात में सर हिला दिया। तो अगर मेरे कहने पर तुम इसे यहाँ बुलाओगी तो क्या वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी? कर्नल भरतराज ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महालक्ष्मी ने कहा तो कर्नल भरतराज के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। तो बुलाओ उसे, कर्नल भरतराज ने कहा। उसे एहतियातन अपनी मेज का दराज खोला और फिर उसके हाथ बेइख्तियार मेज के दराज में चला गया, जहाँ उसका सरकारी रिवॉल्वर पड़ा हुआ था। इसका हाथ रिवॉल्वर पर जम गया था कि अगर हमाशी इसके सामने आकर इस पर हमला करने की कोशिश की तो फौरन रिवॉल्वर निकालकर इस पर बेदरीक फायरिंग शुरू कर देगा। हमाशी, महालक्ष्मी ने दाईं तरफ देखकर कदर तहमकाना आवाज में कहा तो उसी लम्हे अचानक धुआं सा फैला, और दूसरे लम्हे ये देखकर कर्नल भरतराज उछल पड़ा कि मेज की दूसरी तरफ एक नौजवान लड़की नमूदार हुई। इस नौजवान लड़की का रंग रूप और इसकी शक्ल हूबहू महालक्ष्मी जैसी थी। उसकी आंखें सर के बाल और कद का भी महालक्ष्मी जैसा था। यहाँ तक कि उसने जो लिबास पहना हुआ था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसे महालक्ष्मी ने पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हमाशी या तो महालक्ष्मी की जुड़वा बहन हो या फिर किसी कद आदम आईने के सामने महालक्ष्मी खड़ी हो और कर्नल भरतराज इसी का अक्स देख रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि महालक्ष्मी उसके सामने कुर्सी पर बैठी हुई थी, जबकि उसकी हमशक्ल लड़की मेज से काफी फासले पर खड़ी थी। ये तो बिल्कुल तुम्हारी हमशक्ल है, कर्नल भरतराज ने आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ, इसका असल रूप बेहद रौना है। इसे देखकर तुम बेहोश हो जाओगे, इसलिए मेरे कहने पर ये हमेशा मेरे ही रूप में रहती है, इसी हालत में जाहिर होती है, महालक्ष्मी ने कहा। कर्नल भरद्वाज बददस्तूर उसे फटी फटी नजरों से देख रहा था। महालक्ष्मी और उसकी हमशक्ल को जाय में सिर्फ आंखों का फर्क वाज़िया था। महालक्ष्मी की आंखें नॉर्मल थी, लेकिन इसकी हमशक्ल की आंखें गोल और सुख थी और वो पल के बिना चिपका रही थी। इसे देखकर तो मुझे वाकई खौफ हो महसूस हो रहा है। इसे जाने का कहो अभी और इसी वक्त, कर्नल भरद्वाज ने कहा। इसके लहजे में काफी खौफ वाज़ा हो रहा था।
ठीक है हमाशी, तुम जाओ, महालक्ष्मी ने कहा तो उसकी हमशक्ल हमाशी जिस तरह जाहिर हुई थी इसी तरह वहां से गायब हो गई। क्या वो यहाँ से चली गई है? कर्नल भरद्वाज ने खौफ चारों तरफ देखते हुए कहा। नहीं, वो यही है लेकिन गायबी हालत में है, महालक्ष्मी ने जवाब दिया। तो कर्नल भरद्वाज यकलक कांप उठा। इसे इस कमरे से बाहर भेज दो, कर्नल भरद्वाज ने इस बार मिन्नत भरे लहजे में कहा। बेफिक्र हो, वो जहाँ होते हुए भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तुम यही समझो कि वो यहाँ से चली गई है, महालक्ष्मी ने कहा। लेकिन मुझे बदस्तूर उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है, तुम उसे बाहर भेज दो प्लीज, कर्नल भरद्वाज ने कहा। तो उसका खौफ देखकर महालक्ष्मी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, महालक्ष्मी ने कहा। उसके गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखा जहाँ एक लम्हा कबल उसकी हम शक्ल हमाशी मौजूद थी। हमाशी, तुम इस कमरे से बाहर चली जाओ, जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगी, महालक्ष्मी ने कहा। कर्नल भरद्वाज आंखें फाड़ फाड़ कर इस तरफ देखने की कोशिश कर रहा था जहां महालक्ष्मी देख रही थी, लेकिन इसे वहां कुछ भी दिखाई न दे रहा था। लो, वो इस कमरे से बाहर चली गई है, महालक्ष्मी ने कर्नल भरद्वाज से मुखातिब होकर कहा। हाँ, अब मुझे भी खौफ महसूस नहीं हो रहा है, इसकी मौजूदगी मेरा रुआ रुआ खड़ा हो रहा था, इसलिए मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था, कर्नल भरद्वाज ने मुस्कुराते हुए कहा। तो महालक्ष्मी भी एकदर हंस पड़ी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मैं तुम्हें ये सब कुछ बताने और खास तौर पर हमाशी से मिलाने के लिए यहाँ आई थी। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान जल्दी काफिस्तान पहुंचने वाले हैं, वो जब आएंगे तो हमाशी मुझे इनके बारे में बता देगी और फिर मैं इनके खिलाफ भरपूर अंदाज में कार्रवाई करूंगी और इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा दूंगी। इसके बाद मैं तुम्हें खुद ही रिपोर्ट दे दूंगी, महालक्ष्मी ने कहा और उठकर खड़ी हो गई। कर्नल भरद्वाज ने इस्पात में सर हिलाया और वो भी उठकर खड़ा हो गया। वो महालक्ष्मी के पास अपनी ताकत देकर इसे बेहद मरूब दिखाई दे रहा था। महालक्ष्मी ने इसे टाटा किया और मुड़कर तेज तेज कदम उठाती बहन दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद महालक्ष्मी कर्नल भरद्वाज के हेडक्वार्टर से निकलकर अपनी कार में काफिस्तान के दारुल हुकूमत की सड़कों पर उड़ी जा रही थी। वो भी थोड़ी ही दूर गई होगी कि उसी लम्हे इसकी कार को साइड सीट पर इसकी मुश्किल लड़की नमूदार हो गई। इसे देखकर महालक्ष्मी मुस्कुराने लगी। इसकी हमशक्ल लड़की हमाशी के लबों पर भी इस जैसी मुस्कुराहट उभर आई। मुझे देखकर कर्नल भरद्वाज काफी डर गया था, हमाशी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानती थी कि वो डर जाएगा, मेरे इसके पास जाने का मकसद भी यही था कि मैं तुम्हारे बारे में इसे बताऊं और जब मैं तुम्हें इसके सामने लाऊं तो वो तुम्हें देखकर डर जाए। वो रेड पावर एजेंसी का चीफ है, लेकिन अमली तौर पर मैं रेड पावर की चीफ बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो हमेशा मेरा महकूम बनकर रहे और मेरी किसी भी बात पर इख्तलाफ न करे, महालक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे डराना था तो तुमने मुझे इसके सामने अपने रूप में आने का क्यों नहीं कहा? मुझे इसके सामने मेरे असल रूप में आने देती, महालक्ष्मी ने कहा। नहीं, वो दिल का कमजोर आदमी है, अगर तुम उसके सामने असल रूप में आती तो उसे हार्ट अटैक आ जाता और वो वहीं हलाक हो जाता, महालक्ष्मी ने कहा। तो हमाशी ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि पाकिस्तानी एजेंट काफिलिस्तान पहुंच चुके हैं, हमाशी ने कहा। तो महालक्ष्मी बेइख्तियार चौंक पड़ी। ओह, कहाँ है वो? महालक्ष्मी ने कहा। वो चार दारुल हुकूमत के ड्रीमलैंड होटल में मौजूद है, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 7, 8, 9 और 10, लेकिन इस वक्त वो रूम नंबर 7 में एक साथ मौजूद है, हमाशी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं अभी उनका इंतजाम करती हूँ, महालक्ष्मी ने कहा और फिर उसने फौरन कार सड़क की साइड पर करके रोक दी। कार रोकते ही उसने डैशबोर्ड से जदीद सार का एक सेलफोन निकाला और उसे ऑन करके तेजी से नंबर प्रेस करने लगी। धारा बोल रहा हूँ, राब्ता मिलते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। महालक्ष्मी बोल रही हूँ, महालक्ष्मी ने तहमकाना लहजे में कहा। और यस मैडम, हुक्म दूसरी तरफ से धारप ने मुद्दबाना लहजे में कहा। वो चारों पाकिस्तानी एजेंट्स यहाँ पहुंच चुके हैं, महालक्ष्मी ने कहा। वो कहाँ है वो मैडम, क्या इनका पता मालूम है? दूसरी तरफ से धारप ने चौंकते हुए कहा। हाँ, पता नोट करो, वो चार हुकूमत के ड्रीमलैंड होटल में मौजूद हैं, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 7, 8, 9 और 10, लेकिन वो चारों तुम्हें रूम नंबर 7 में मिलेंगे, महालक्ष्मी ने जवाब देते हुए कहा। ओके मैडम, मैं अभी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता हूँ और इन चारों को जाते गोलियां मारकर हलाक कर देता हूँ, धारप ने कहा। नहीं, अभी इन्हें गोलियां मारने की जरूरत नहीं है, तुम इन चारों को जिंदा पकड़कर SS पॉइंट पर ले आओ, मैं वहां पहुंचकर इन चारों से बात करूंगी और अपने हाथों से इन्हें हलाक करूंगी, महालक्ष्मी ने सख्त लहजे में कहा। यस मैडम, आपके हुक्म के तामील की जाएगी, धारप ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। जल्द से जल्द वहां पहुंच जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले वो निकल जाए, महालक्ष्मी ने कहा। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मैं सिर्फ 15 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा, अगर आप मुझे इनके हुलिये बता दे तो उन्हें पहचानने में हमें ज्यादा आसानी होगी, धारप ने कहा। धारप की बात सुनकर महालक्ष्मी ने साहब बैठी हुई हमाशी की तरफ देखा तो हमाशी उसे आहिस्ता आवाज में इन चारों के हुलिये बताने लगी और महालक्ष्मी हमाशी के बताए हुए हुलिये धारप को बताने लगी। बस मैडम, मेरे लिए इतना ही काफी है, अब मैं आसानी से इन्हें पहचान लूंगा, दूसरी तरफ से धारप ने कहा। तो महालक्ष्मी ने ओके कहकर राब्ता खत्म कर दिया और सेलफोन कान से हटाकर इसे ऑफ किया और डैशबोर्ड पर रख दिया। मैं खुद जाकर उसकी निगरानी करती हूँ ताकि वो इन्हें चकमा देकर निकलने की कोशिश करे तो मैं तुम्हारे साथियों की मदद कर सकूं, हमाशी ने कहा। तो महालक्ष्मी ने इस बात में सर हिला दिया और इसे सर हिलाते देखकर हमाशी जकलक गायब हो गई। इसे गायब होता देखकर महालक्ष्मी ने एक तवील सांस लिया और कार को गियर लगाकर आगे बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर अब बेपनाह इत्मीनान के तासुरात थे। इमरान बिजली की सी तेजी से दौड़ता चला जा रहा था।
वो इस कदर तेजी से दौड़ रहा था जैसे वो जमीन पर दौड़ने की बजाय हवा में उड़ता जा रहा हो। अपनी जिंदगी में इस कदर तेजी से दौड़ने का ये इसका पहला मौका था। खुश्क झाड़ से भरी हुई जमीन पर दौड़ता हुआ वो जल्दी घने दरख्तों और सरसब्ज घास फूस और जंगली पौधों के इलाकों में पहुंच गया। इमरान ने इन पौधों को देखा तो उसने अपना रुख मोड़ा और एक तरफ कितार की शक्ल में मौजूद दरख्तों की तरफ बढ़ता चला गया। ये दरख्त घने थे और तवील कितार की शक्ल में दूर तक जाते हुए दिखाई दे रहे थे। दरख्त काफी ऊंचे थे और इनका ऊपर से फैलाव भी इतना ज्यादा था कि इमरान आसानी से इन पर चढ़ भी सकता था और एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग भी लगा सकता था। एक बड़े से दरख्त के करीब पहुंचते ही इमरान रुके बगैर दरख्त पर चढ़ना शुरू हो गया। इस कदर तेजी से मुसलसल दौड़ते रहने के बावजूद इसे ना तो थकावट हुई थी और ना ही उसका सांस फूला था। ये शायद इस मशरूब का असर था जो शाह बाबा ने इसे पिलाया था। मुसलसल और काफी देर तक दौड़ते रहने के बावजूद उसे यही महसूस हो रहा था जैसे वो इत्मीनान भरे अंदाज में चलता हुआ आया हो। वो दरख्त पर किसी बंदर किसी फुर्ती से चढ़ा और फिर वो दरख्त के शाखों पर होता हुआ आगे आया और उसे दूसरे दरख्त की शाख पर छलांग लगा दी। दरख्त की शाख पकड़ते ही उसे अपना जिस्म लहराया और साथ वाली बड़ी शाख पर हाथ डाल दिया। उसे अपना जिस्म संभाला और फिर बड़ी शाख पर आते ही वो सीधा हुआ और दरख्त के अगले हिस्से की तरफ बढ़ा। वो तीन शाखों को पकड़ता हुआ वो आगे बढ़ा और उसने तीसरे दरख्त की शाख पर छलांग लगा दी। जंगल की तरफ से उसे बददस्तूर फायरिंग और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो दरख्तों पर छलांगे लगाता और शाखें पकड़ता मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसे जंगल में शदीद हलचल दिखाई दी तो वो साथ ही जानवरों के चीखने चिल्लाने और दौड़ने भागने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसे नीचे देखा तो उसे बहुत से जानवर और दरिंदे वहां भागते हुए दिखाई दिए, जिनमें शेर, हाथी, बदमाश और चीतों की भी बड़ी तादाद शामिल थी। शायद ये सब जंगल में होने वाले धमाके की आवाजें सुनकर भाग रहे थे। इमरान ने नीचे पौधों पर हर तरफ अजीबो गरीब कीड़े मकोड़े भी देखे और उसे जगह जगह मुख्तलिफ रंगों नस्ल के नाग भी रेंगने में दिखाई दे रहे थे। इमरान जिन दरख्तों पर सफर कर रहा था ये भूभाग के मखसूस दरख्त थे जिनके पत्ते सब्ज और हल्के जर्द रंग के होते हैं। इन दरख्तों की खासियत ये होती है कि इन पर दीमक ना लगती है और दरख्त के पत्तों से हल्की हल्की ऐसी बू फूटती रहती है जो नागों और हशारुल अराज के लिए इंतहाई नागवार होती है। नाग हत्ता की चूंटियां भी इस बू की वजह से इन दरख्तों पर आना पसंद नहीं करती और घने जंगल में होने के बावजूद ये दरख्त हर किस्म के हशारुल अराज से पाक हो रहते हैं। इन पत्तों से निकलने वाली बू की वजह से कोई परिंदा भी इन दरख्तों पर ना बैठता था। यही वजह थी कि इमरान इन दरख्तों पर आसानी से आगे बढ़ रहा था और इसके रास्ते में कोई नाग तक न आया था। कितार की शक्ल में भौभाग के दरख्तों पर सफर करता रहा। वो काफी दूर निकल आया तो उसे दूर से हर तरफ आग के शोले भड़कते हुए दिखाई देने लगे। दरख्तों के झुंड से उसने आसमान पर इन कोबरा हेलीकॉप्टरों को भी देख लिया जो तेजी से जंगल को मखसूस हिस्से की तरफ आ रहे थे और झपट झपट कर फायरिंग करने के साथ साथ मिसाइल दाग रहे थे। जंगल के इस हिस्से में जैसे क्यामत सी मची हुई थी। दूर से ही वहशियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इन आवाजों को सुनकर इमरान ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक उसने दो लंबे तड़ंगे वहशियों को दरख्त पर छलांगे लगाकर इस तरफ आते देखा। वो शायद हेलीकॉप्टर से होने वाली फायरिंग से बचकर इस तरफ आ निकले थे। उनके कांधों पर मशीन गन्नें लटक रही थी। उनके जिस्मों पर सुर्ख रंग के लंगोट थे और इनके जिस्म भी सब्ज रंग की मिट्टी से रंगे हुए दिखाई दे रहे थे। रुक जाओ, इस तरफ मत जाओ, उधर हर तरफ मौत नाच रही है। हुकूमत ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया है और वो हमारे सारे कबीले पर फायरिंग कर रहे हैं और मिसाइल बरसा रहे हैं। इनमें से एक वैशी ने इमरान को देखा तो दरख्तों पर छलांगे लगाता हुआ उसके करीब आ गया, जबकि दूसरा वैशी वहीं रुक गया था। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? हुकूमत ने हमारे कबीले पर हमला क्यों किया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं नहीं जानता। हम कबीले में मौजूद थे कि अचानक हर तरफ से हेलीकॉप्टर आए और उन्होंने जकला कबीले में मुसलसल फायरिंग करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने बम और मिसाइल बरसाए और कबीले हमारे पर क़यामत तोड़ दी। इस वैश्य ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा, तो क्या सरदार और हमारे कबीले वालों ने हेलीकॉप्टर को तबाह करने की कोशिश नहीं की? हमारे पास भी तो हथियार की कोई कमी नहीं है, इमरान ने कहा। हमारे पास हर किस्म का असला मौजूद है। हमारे साथियों ने बजोका गनों और मिनी मिसाइलों से इन हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हम तो हेलीकॉप्टर को मार गिराने में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन फिर अचानक हेलीकॉप्टर में गैस बम फायर होने लगे। हाँ, तो गैस फैल गई। गैस इस कदर जहरीली थी कि हमारे लिए वहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया था। इस गैस से बचने के लिए हम साकाहो जंगल में कूद गए। झील में रहने की वजह से हम पर गैस का असर न हो रहा था, लेकिन शायद हेलीकॉप्टर वालों ने हमें झील में जाते देख लिया था। इन्होंने झील में घेराव किया और फिर इन्होंने झील में ताकतवर बम फेंकना शुरू कर दिए। झील में तूफान सा उठा और हमने अपने बेशुमार साथियों के टुकड़े उड़ते देखे। झील में बम गिरते देखकर मैं और कोशा गहराई में चले गए और हम झील के दूसरे किनारे पर आए और एक दलदल से गुजरते हुए वहां से बचकर इस तरफ आ गए।
इस वहशी ने जवाब दिया। वो इमरान से यूं बातें कर रहा था जैसे वो इमरान को बखूबी जानता हो। इमरान समझ गया कि उनके जिस्मों पर लगी हुई सब्ज मट्टी दलदल की हो सकती है जिससे वो निकल कर आए थे। अब क्या सूरत हाल है कबीले की और सरदार कोबला कहाँ है? इमरान ने कुछ सोच कर पूछा। कबीला मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हर तरफ आग लगी हुई है। आग ने जंगल को भी अपनी लपेट में ले लिया है और कबीले में जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आखिरी बार मैंने सरदार को कबीले में ही भागते देखा था। अब वो कहाँ है मैं नहीं जानता, वहशी ने जवाब दिया। तो अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? इमरान ने पूछा। छोटे कबीले की तरफ। हम देखना चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर ने वहां जाकर हमारी बीवी बच्चों को भी तो नुकसान नहीं पहुंचाया। उस वहशी ने कहा। ठीक है तुम जाओ, मैं कबीले की तरफ जाता हूँ और आग से बचकर कबीले में पहुंचकर सरदार कोबला को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि वो जिंदा और किसी महफूज मुकाम पर हो, इमरान ने कहा। हाँ, वो अपने साथ एक लाश ले जा रहा था। मैंने इसे हेलीकॉप्टर की काली तरफ जाते देखा था। अगर वो काली पहाड़ी तक पहुंचने गया है तो फिर समझो वो इस काली पहाड़ी के स्याह गार में होगा। वैशी ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। लाश? इमरान ने कहा। हाँ, वो अजीब सी लाश थी जो वो न जाने कहाँ से लाया था। लाश इंतहाई पुरानी मालूम हो रही थी। उसके साथ जिस्म पर मैली कुचैली पट्टियां लिपटी हुई थी। फिर उसने इस लाश को अपनी झोंपड़ी में रखा हुआ था और अब वो इसे लेकर काली पहाड़ी की तरफ दौड़ रहा था, वहशी ने कहा। ठीक है मैं देखता हूँ, इमरान ने कहा। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा हुलिया तो हमारे कबीले वालों जैसा है, लेकिन मैं तुम्हें पहले कभी अपने कबीले में नहीं देखा। क्या नाम है तुम्हारा? इस वहशी को अचानक ख्याल आया तो वह इमरान को देखकर चौंक कर पूछने लगा। ये सब बताने का अभी मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे सरदार कोबला को ढूंढना है और उसे वहां से बचा कर निकाला है। तुम जाकर छोटे कबीले को देखो, इमरान ने कहा। फिर वो तेजी से मुड़ा और दूसरे दरख्त पर छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ गया। वह शहर से उसकी तरफ देख रहा था। इमरान रुके बगैर दरख्तों पर छलांगे लगाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। आओ कोशा, जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द छोटे कबीले में पहुंचना है। इमरान ने वहशी की आवाज़ सुनी तो उसके चेहरे पर कदर इत्मीनान के तासरात उभर आए। उसे अंदाज से इमरान समझ गया था कि उसने इस पर ज़्यादा तवज्जो ना दी थी। इमरान ने सर घुमाकर देखा तो वो दोनों तेज से दरख्तों पर छलांगे लगाते दूसरी तरफ जाते दिखाई दिए। इमरान ने एक तवील सांस लिया और एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। वो दरख्तों से होता हुआ जंगल के इस हिस्से में पहुंच गया जहाँ कबीला आबाद था। कबीले में अब भी हर तरफ हर बॉर्डिंग मची हुई थी। पूरे कबीले में आग भड़क रही थी और जमीन पर मौजूद झाड़ियों के साथ कबीले के इर्द गिर्द दरख्त भी जल रहे थे। कबीले में बचने वाले वहशी अब भी हर तरफ जाने बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन दरख्तों के ऊपर कोबरा हेलीकॉप्टर लंबे लंबे चक्कर काटते और गोता लगाते हुए इस तरफ आकर कबीले के वहशियों पर फायरिंग कर रहे थे। हेलीकॉप्टर वालों के पास शायद मिसाइल खत्म हो चुके थे, इससे अब वो सिर्फ फायरिंग कर रहे थे और फायरिंग की जिद में आने वाले वहशी उछल उछल कर गिर रहे थे। वहशियों के पास भी असलहा था और वो भी इन हेलीकॉप्टर को देखकर पोजीशन संभाल संभाल कर फायरिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास आम मशीन गन्नें थी जबकि हेलीकॉप्टर से उन्हें हैवी मशीन गन्नों से निशाना बनाया जा रहा था। इमरान घने दरख्तों की आड़ में कबीले को दूर से देख रहा था। वह इतनी आग थी कि अब इमरान के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। अब वो जेल में दिखाई दे रही थी जिसके बारे में इस रात से मिलने वाले वैश्य ने बताया था। झील के पानी सुर्खी मायल था और झील में जगह जगह वैश्यों की कटी पटी लाशें तैरती हुई दिखाई दे रही थी। इमरान कुछ देर वहां रुका रहा, फिर वो घने दरख्तों में घुसता हुआ हेलीकॉप्टर वालों की नजरों से बचने के लिए दायरे की शक्ल में आगे बढ़ने लगा। वो जलते हुए दरख्तों से काफी फासले पर था। दरख्तों पर से होता हुआ वो काली पहाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसके बारे में वहशी ने उसे बताया था कि उसने सरदार कोबला को पुरानी पट्टियों में छिपी हुई एक लाश को उठाकर इस पहाड़ी की तरफ जाते देखा था। इमरान अभी थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसने दो हेलीकॉप्टर कबीले के दरमियान में आते देखा। हेलीकॉप्टर कबीले के ऐन ऊपर हवा में मुअल्लिक हो गए और फिर इन्होंने इन हेलीकॉप्टर से बड़ी बड़ी रस्सियां लटकते देखी। दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर से ट्रोपोस निकले और वो रस्सियों पर मखसूस अंदाज में फिसलते हुए नीचे आते दिखाई दिए। इमरान समझ गया कि हेलीकॉप्टर वालों ने पूरे कबीले को तबाह कर दिया है और अब वो कबीले में ट्रोपोस को उतार कर बाकी मानदा वहशियों को हलाक करना चाहते थे। इमरान के पास पुराने और जंग आलूद खंजर के सिवा कुछ न था। वो आगे बढ़ता रहा। अब इसे कबीले और कबीले वालों से कोई दिलचस्पी न थी। वो वहशी उसे बता चुका था कि सरदार कोबला अंकाल की लाश को निकाल कर काली पहाड़ी की तरफ ले गया था और वो इस काली पहाड़ी तक पहुंचना चाहता था। मुसलसल और काफी देर कबीले के गिर्द दरख्तों पर छलांगे लगाने के बाद वो जब कबीले के अगबी हिस्से में आया तो इसे कबीले की तरफ एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दी। इस पहाड़ी की चट्टानें स्याह रंग की थी।
पहाड़ चूंकि चुटेल थी और इस पर दरख्त और झाड़ियां ना थी, इसलिए वो दूर से इसे दिखाई दे गई थी। इस पहाड़ी को देखते इमरान की रफ्तार और तेज हो गई और उसने तख्तों पर छलांगे लगाते और शाखों को पकड़कर इस पर झूलते हुए काली पहाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। कबीले के गिर्द एक बड़े दायरे की शक्ल में खुंदक बनी हुई थी जिसमें आग जल रही थी। कबीले वालों ने खुंदक के बाहर दूर दूर तक दरख्त काटकर जमीन साफ कर दी थी, इससे जंगल के इस तरफ आग ना पहुंची थी। आग खुंदक के दरमियान में कबीले के दरख्तों तक महदूद थी। अगर खुंदक न होती और कबीले वालों ने दरख्त काटकर मैदान ना बनाया होता तो ये आग जंगल में पहुंच सकती थी और पूरे जंगल में हर तरफ आग ही आग फैल जाती। चूंकि कबीले को दूर से आसानी से देखा जा सकता था, इससे हेलीकॉप्टर वालों को इस कबीले पर हमला करने और वहां तबाही मचाने का मौका मिल रहा था। इमरान थोड़ी देर बाद इस काली पहाड़ी की तरफ पहुंच गया। काली पहाड़ी के करीब चूंकि कोई दरख्त ना था, इसलिए इमरान को दरख्त से नीचे आना पड़ा। इसके सामने तकरीबन 200 मीटर के फासले पर कदरे साफ मैदान था और इस मैदान में भी इसे बेशुमार वहशियों की लाशें दिखाई दे रही थी। इमरान झुके झुके अंदाज में आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर एक वहशी की लाश के करीब पड़ी हुई उसकी मशीन गन उठा ली और फिर वो इधर उधर देखता हुआ पहाड़ी की तरफ बढ़ा। अभी वो थोड़ा ही आगे गया होगा कि अचानक दाएं तरफ से हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ इस तरफ आ गया। हेलीकॉप्टर काफी नीचे परवाज कर रहा था। हेलीकॉप्टर को इस तरह अचानक नमूदार होता देखकर इमरान ने फौरन जमीन पर छलांग लगाई और घनी झाड़ियों में घुसता चला गया। लेकिन शायद इसे देख लिया गया था, क्योंकि जैसे इमरान ने झाड़ियों में छलांग लगाई उसी लम्हे हेलीकॉप्टर के नीचे लगी मशीन गन के धाने खुले और आग की 2 लंबी लकीरें निकलकर ठीक इस तरफ आई जिस तरफ इमरान ने छलांग लगाई थी। गोलियां इमरान के बिल्कुल करीब से लंबी लकीरें बनाती हुई गुजर गई। इमरान ने तेजी से करवट बदली और फिर वो उठा और तेजी से मुड़कर दूसरी तरफ भागने लगा। हेलीकॉप्टर गोलियां बरसाता हुआ एन इसके ऊपर से गुजरा और फिर वो आगे जाकर मुड़ा और मुड़ते ही उसने इमरान की तरफ एक बार फिर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा नीचे की तरफ झुका हुआ था और वो फायरिंग करता हुआ तेजी से इमरान की तरफ आ रहा था। इमरान जिगजैग अंदाज में वापस जंगल की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन जाहिर है उसकी रफ्तार गोलियों की रफ्तार से ज्यादा ना हो सकती थी। हेलीकॉप्टर से निकलने वाली गोलियां लकीरें बना दी उसके दाएं बाएं से गुजरी और दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर गिड़गिड़ाता हुआ एन इमरान के सर पर आ गया। इमरान ने फौरन दूसरी तरफ छलांग लगाई और जमीन पर गिरते उसने कलाबाजी खाई और अपने जिस्म सीधा करते उसने हाथ में पकड़ी मशीन गन का रुख ऊपर किया और अपने ऊपर से गुजरते हुए हेलीकॉप्टर में मुसलसल फायरिंग करना शुरू कर दी। थरथराहट की आवाज खसूस के साथ मशीन गन की गोलियां हेलीकॉप्टर के नीचे हिस्से से टकराईं, लेकिन हेलीकॉप्टर तेजी से जंगल के दरख्तों की तरफ चला गया। हेलीकॉप्टर को आगे जाता देखकर इमरान तेजी से उठा और फिर झाड़ियों में इस तरफ दौड़ता चला गया जहां उसने वहशी की लाशें देखी थी। उसने एक वहशी की लाश बंदूका गन में देखी थी जिसके अगले हिस्से गोला लगा हुआ था। वो अभी वहशी की लाशों की तरफ आया ही था कि उसी लम्हे हेलीकॉप्टर दरख्तों के ऊपर से घूमता हुआ निकला और मुड़कर उसकी तरफ बढ़ा। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी हुई गनों से फिर आग की धारें निकली और इमरान की तरफ बढ़ी। इमरान ने एक बार फिर छलांग लगाई और गोलियां एन इसके पहलू के करीब से गुजरती चली गई। इमरान की ये फुर्ती काम आ गई, वरना इस बार हेलीकॉप्टर से उसका निशाना लेकर फायरिंग की गई थी। इमरान की जगह और कोई होता तो यकीनन इन गोलियों से उनके छींतरे उड़ गए होते। छलांग लगाकर इमरान जैसे ही जमीन पर आया वो तेजी से करवटें बदलता चला गया। हेलीकॉप्टर उससे कुछ फासले से गुजरा और फिर आगे जाकर मुड़ने ही लगा था कि इमरान करवटें बदलता हुआ एक वहशी की लाश के करीब आया तो इस लाश के पास बंदूका गन देखकर इमरान की आंखों में चमक आ गई। उसे करवटें बदलते हुए तेजी से बंदूका गन उठाई और किसी सांप की तरह पलटा खाकर सीधा हो गया। इस लम्हे हेलीकॉप्टर मुड़ा और उसने एक बार फिर इमरान की तरफ रुख करके इसकी तरफ फायरिंग करनी शुरू कर दी और गोलियां इस बार उसके दाएं बाएं से गुजरी थी। वो पेट के बल लेटा हुआ था। उसे बंदूका गन सीधी की और फिर अपनी तरफ बढ़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ देखते हुए बंदूका गन के ट्रिगर पर उंगली जमा दी। हेलीकॉप्टर के पायलट ने शायद इसके हाथ में बंदूका गन देख ली थी। उसने फौरन हेलीकॉप्टर घुमाना चाहा, लेकिन उसी लम्हे इमरान ने ट्रिगर दबा दिया। गन को जोरदार झटका लगा और गोला निकलकर आग और धुआं उगलता हुआ बिजली की सी तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। दूसरे लम्हे बंदूका गन को गोला हेलीकॉप्टर की फ्रंट विंड स्क्रीन से टकराया और स्क्रीन तोड़ता हुआ हेलीकॉप्टर में घुस गया। हेलीकॉप्टर लहराया और फिर यकलक एक जोरदार धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर के पुर्जे बिखरते चले गए। हेलीकॉप्टर के बेशुमार टुकड़े बिखरते हुए इमरान की तरफ भी आए थे। इमरान ने फौरन अपना सर झुका लिया। हेलीकॉप्टर का एक बड़ा सा फौलादी टुकड़ा एन इसके ऊपर से गुजरता चला गया। दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर का बचा कुचा हिस्सा आगे को अलाव बनकर इमरान के से कुछ फासले पर जमीन पर गिरता नजर आया।
عمران نے فوراً خالی بازوکا گن ایک طرف پھینکی اور کروٹیں بدلتا ہوا دور ہٹتا چلا گیا۔ ہیلی کاپٹر کی آگ زمین پر پھیلی ہوئی جھاڑیوں پر تیزی سے پھیل گئی تھی۔ عمران کچھ دیر کروٹیں بدلتا رہا، پھر وہ اٹھا اور اس نے مڑ کر ایک بار پھر کالی پہاڑی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ پہاڑی تک پہنچا اور پھر ایک اور ہیلی کاپٹر کی آواز سن کر فوراً ایک چٹان کی آڑ میں ہو گیا۔ اس کے چٹان کی آڑ میں ہونے کی دیر تھی کہ پہاڑی کے عقب سے ایک اور کوبرا ہیلی کاپٹر نکل کر اس کی طرف آ گیا۔ ہیلی کاپٹر شاید قریب ہی موجود تھا اور اس ہیلی کاپٹر کو تباہ ہوتا دیکھ کر اس طرف آیا تھا۔ عمران جس چٹان کے پاس تھا وہاں چھوٹے بڑے پتھر بھی پڑے تھے۔ عمران نے خود کو ان پتھروں میں چھپا لیا تھا۔ اب اگر ہیلی کاپٹر والے نیچے آتے تب بھی وہ انہیں دکھائی دے سکتا تھا، ورنہ ہیلی کاپٹر والے اسے بلندی سے کسی طور پر نہ دیکھ سکتے تھے۔ ہیلی کاپٹر قدرے بلندی پر رہ کر تباہ ہونے والی ہیلی کاپٹر کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور پھر اچانک اس ہیلی کاپٹر چلتے ہوئے ہیلی کاپٹر اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں بے تحاشا فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ وہ شاید اس وحشی کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس نے ان کے خیال میں ہیلی کاپٹر کو بازوکا گن سے تباہ کیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کافی دیر تک ارد گرد کے علاقے میں فائرنگ کرتا رہا اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ جب عمران نے ہیلی کاپٹر کے دور جانے کی آواز سنی تو پتھروں اور چٹانوں کی آڑ سے نکلا اور کالی پہاڑی کے ساتھ ساتھ جھکے جھکے انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اسے اس پہاڑی کے اس غار کی تلاش تھی جس میں کوبلا انکال کی لاش کے ساتھ موجود تھا۔ اسے پوری پہاڑی کا چکر لگا لیا لیکن اسے اس پہاڑی میں کسی غار کا دانہ دکھائی نہ دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس وحشی نے تو کہا تھا کہ اس پہاڑی میں غار موجود ہے اور اس نے کوبلا کو لاش لے کر اس طرف جاتے دیکھا تھا، لیکن یہاں تو کوئی غار موجود نہیں ہے۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے ایک بار پھر پہاڑی کا چاروں طرف چکر لگایا لیکن وہاں واقعی کوئی غار موجود نہ تھا۔ شاید وہ پہاڑی نہیں ہے، اس کے بارے میں وحشی نے بتایا تھا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے اچانک دائیں طرف سے چند انسانوں کے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنی۔ ان آوازوں کو سن کر عمران فوراً ایک چٹان کی آڑ میں آ گیا۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا تو جنگل کی طرف سے اسے چار وحشی دوڑ کر اس طرف آتے دکھائی دیے۔ یہ تو وشنام قبیلے کے وحشی معلوم ہوتے ہیں، عمران نے کہا۔ وحشیوں کے ہاتھوں مشین گنیں تھیں اور وہ جھکے جھکے انداز میں تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کالی پہاڑی کی طرف دوڑے آ رہے تھے جہاں چٹان کے پیچھے عمران چھپا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں چاروں وحشی عمران سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گئے اور دوسری چٹانوں کے پیچھے چھپ گئے۔ تباشا غار کو دھانا کھولو، جلدی کرو، اس سے پہلے کہ ہیلی کاپٹر اس طرف آئے اور ہمیں دیکھ کر لیں، ہمیں سردار کوبلا کے پاس غار میں جانا ہے۔ اس لمحے میں عمران کو ایک وحشی کی چیختی آواز سنائی دی۔ عمران نے دیکھا ایک وحشی اس سے کچھ فاصلے پر ایک بڑی چٹان کے پاس موجود تھا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا، اس سے وہ عمران کو نہ دیکھ سکتا تھا لیکن عمران اسے بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ میں غار کا دھانا کھول رہا ہوں، اس وحشی نے جواب دیا تو جیسے عمران بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ وحشی نے دونوں ہاتھ چٹان پر رکھے ہوئے تھے، چٹان کے اس حصے میں دو بڑے بڑے پتھر سے ابھرے ہوئے تھے۔ وہ وحشی دونوں ہاتھوں سے ان پتھروں کو دائیں بائیں گھمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلن میں پتھروں کو دائیں بائیں گھماتا رہا، پھر اس نے دونوں پتھروں کو ایک ساتھ اندر کی طرف دبا دیا۔ دوسرے لمحے ہلکی سی گھڑگھڑاہٹ کی آواز کے ساتھ عمران نے بڑی چٹان کو اندر کی طرف دبتے دیکھا۔ جیسے چٹان اندر کی طرف دبی وہاں ایک غار کا بڑا سا دھانا نمودار ہو گیا۔ اس دھانے کو دیکھ کر عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ آ جاؤ، غار کا دھانا کھل گیا ہے، اس وحشی نے چیختی آواز میں کہا تو دوسری طرف چھپے ہوئے وحشی تیزی سے نکل کر دھانے کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دھانے کے قریب پہنچے اچانک جنگل کی طرف سے ایک میزائل اڑتا ہوا آیا۔ عمران نے میزائل دیکھ کر فوراً خود کو زمین سے چپکا لیا۔ میزائل ٹھیک غار کے دھانے کے قریب موجود چاروں وحشیوں کے قریب آ کر پھٹا اور عمران نے ان چاروں وحشیوں کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے دیکھے۔ اسے عمران نے جنگل کی طرف سے کئی مسلح افراد کو اس طرف دوڑ کر آتے دیکھا۔ یہ ٹروپ پوز تھے جنہوں نے مخصوص وردیاں پہنی ہوئی تھیں، ان کے ہاتھوں مشین گنیں اور میزائل گنیں تھیں۔ میزائل فائر کرنے کے باوجود وہ اس طرح مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ شاید ان وحشیوں کے پیچھے آئے تھے اور وحشیوں کو پہاڑی کی طرف جاتے دیکھ کر وہ جنگل میں ہی دبک گئے تھے اور ان وحشیوں نے جیسے ہی غار کا دھانا کھولا تھا ٹروپوز نے ان پر میزائل فائر کر کے ان چاروں کو ہلاک کر دیا اور اب وہ اسے کھلے ہوئے دھانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمران دھانے سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس کے بعد سپاہی شاہ بابا کے دیے ہوئے خنجر کے اور کوئی اسلحہ نہ تھا۔ بازوکا گن اٹھانے سے پہلے اس نے مشین گن وہیں پھینک دی تھی اور پھر وہ بغیر کوئی اسلحہ لیے اس پہاڑی کی طرف آ گیا تھا۔ ٹروپوز کے پاس اسلحہ تھا اور مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے پہاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ اگر عمران چٹان کے پیچھے سے نکلتا تو اس آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے، اس سے عمران کے پاس اب اس کے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس چٹان کے پیچھے دبکا رہتا۔ تھوڑی دیر میں ٹروپوز دھانے کے پاس پہنچ گئے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ وہ دھانا قبیلے کا سردار یہ اسی غار میں موجود ہے، چلو جلدی کرو، پوزیشن لو اور غار میں فائرنگ کرو، ہری اپ، ایک آدمی نے چیختی آواز میں کہا اور پھر وہ پانچوں غار کے دھانے کے عین سامنے آئے اور پھر انہوں نے ایک ساتھ غار کے اندر فائر کرنی شروع کر دی۔ ماحول مشین گنوں کی مکسور تھڑتھڑاہٹ کی آوازوں سے گونج اٹھا اور پھر عمران نے یک لخت غار کے اندر سے ایک انسانی چیخ کی آواز سنی۔
चीख की आवाज़ सुनकर इमरान बेचैन सा होकर रह गया। ये यकीनन कबीले के सरदार कोबला की थी जो ट्रोपोस के अंधाधुंध फायरिंग की जिद में आ गया था। हुर्रे हुर्रे, हमने सरदार कोबला को हलाक कर दिया। चलो जल्दी करो, फौरन अंदर जाओ और अंदर से सरदार कोबला और वो पट्टियों वाली पुरानी लाश निकाल कर बाहर ले आओ। उस आदमी ने चीखते हुए कहा तो चारों आदमी झुके झुके अंदाज में कार में फायरिंग करते हुए अंदर जाते दिखाई दिए। उसी लम्हे एक हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ वहां आया और उस हेलीकॉप्टर ने कार से कुछ फासले पर जमीन पर लैंड करना शुरू कर दिया। शायद किसी ने हेलीकॉप्टर को कॉल करके यहाँ बुला लिया था। इमरान अभी ये सब देख ही रहा था कि अचानक तेज और इंतहाई खौफनाक धमाका और उसने यकला कार से आग का अलाव सा निकलता देखा। आग के इस अलाव के साथ उसने इन चारों ट्रोपोस के आज़ा बाहर आते देखे जो कार में गए थे। कार के सामने जो पांचवा आदमी मौजूद था वो भी कार की जिद में आ गया था और वो उछलकर पीछे जा गिरा था। जोरदार धमाके से पहाड़ी और जमीन बुरी तरह से हिल गई थी। जो हेलीकॉप्टर कार के धाने के सामने उतरा था जमीन हिलती देखकर तेजी से हवा में बुलंद होने लगा, लेकिन वो अभी थोड़ी ही बुलंदी पर गया होगा कि अचानक कार के अंदर से एक मिसाइल निकलकर बिजली की सी तेजी से हेलीकॉप्टर की तरह बढ़ा और अगले ही लम्हे हेलीकॉप्टर से टकराया। हौलनाक धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ते चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे कार के अंदर मौजूद किसी से कार में दाखिल होने वाले ट्रोपोस पे बम फेंकना था और फिर इससे कार के अंदर से ही बाहर मौजूद हेलीकॉप्टर मिसाइल फायर कर दिया था। कार से अभी तक आगे के तेज शोले निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। लगता है अंदर मौजूद कोबला खाली हाथ नहीं था। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो झुका और कॉलिंग करने वाले अंदाज में कार के धाने की तरफ बढ़ने लगा। कार के धाने के करीब आकर वो रुक गया। कार से चूंकि अभी तक चिंगारियां बाहर आ रही थी इसलिए इमरान अंदर जाने का रिस्क ना ले सकता था। इमरान को सोच कर चट्टान पर चढ़ा और फिर कार के धाने के एन ऊपर मौजूद एक चट्टान पर आकर बैठ गया। उसकी नजर इर्द गिर्द जायजा ले रही थी कि जंगल से फिर ट्रोपोस ना इस तरफ आ जाए या फिर से कोई हेलीकॉप्टर ना इस तरफ आ निकले। मेरे कबीले का कोई आदमी बाहर है तो मुझे आवाज दे, मैं सरदार को बुलाऊं। इमरान अभी चट्टान पर बैठा ही था कि उसे अचानक कार के अंदर से एक तेज आवाज सुनाई तो वो चौंक पड़ा। मैं हूँ सरदार, इमरान ने कुछ सोचकर इस वैश्य की आवाज में जवाब देते हुए कहा जो इसे रास्ते में मिला था। धांबा, तुम धांबा हो ना? अंदर से सरदार की अव्वलने की आवाज सुनाई दी। हाँ सरदार, मैं धांबा हूँ, इमरान ने जवाब दिया। भाई कोई दुश्मन तो मौजूद नहीं है? सरदार कोबला ने आवाज सुनाई दी। नहीं सरदार, यहाँ कोई दुश्मन जिंदा नहीं है, इमरान ने फौरन कहा। तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ कोई और साथी भी है? सरदार कोबला ने कहा। मैं अकेला हूँ सरदार, इमरान ने कहा। ठीक है, तुम कार के अंदर आ जाओ, जल्दी करो। सरदार कोबला की आवाज से तो इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। वो छलांग लगाकर चट्टान से नीचे आया और कार के धाने के सामने आकर खड़ा हो गया। यहाँ तो आग है सरदार, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। कुछ देर रुक जाओ, अभी खत्म हो जाएगी आग, सरदार कोबला ने जवाब दिया तो इमरान खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद कार के धाने पर जलती हुई आग बुझ गई। अलबत्ता इर्द गिर्द के झाड़े से अभी तक धुआं उठ रहा था। अब आग बुझ गई है, धांबा अंदर आ जाओ, अंदर से सरदार कोबला की आवाज सुनाई दी। ठीक है सरदार, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और उसने इधर उधर देखा और फिर उसने एक तरफ पड़ी हुई मशीन गन उठाई और तेज तेज कदम उठाता हुआ कार के धाने की तरफ बढ़ने लगा। कार में शुरू शुरू में हल्की हल्की रोशनी थी लेकिन आगे अंधेरा ही अंधेरा था। इमरान मशीन गन और खंजर हाथ में लिए आगे बढ़ता रहा। तुम कहाँ हो सरदार? इमरान ने आगे बढ़ते हुए सरदार कोबला को आवाज देते हुए कहा। आगे बढ़ते चले आओ, सरदार कोबला की आवाज सुनाई दी। आवाज काफी दूर से सुनाई दे रही थी। इमरान के चेहरे पर कदर इत्मीनान आ गया कि अंधेरे में सरदार कोबला इसे ना देख सकेगा। बस रुक जाओ। अचानक इमरान ने करीब से सरदार कोबला की आवाज सुनी तो इमरान जकलक रुक गया। कहाँ हो तुम सरदार? इमरान ने अंधेरे में देखते हुए नाकाम कोशिश करते हुए कहा। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, सरदार कोबला की आवाज सुनाई दी। उसे लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई इंसानी वजूद उसके ऐन सामने आकर खड़ा हो गया। धांबा, क्या मतलब? तुम धांबा तो नहीं हो, कौन हो तुम? अचानक सरदार कोबला की हैरत भरी चीखती आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। उसी लम्हे इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसके सामने खड़े वजूद ने उसके सीने पर जोरदार लात मार दी हो। इमरान को जोरदार झटका लगा और वो लड़खड़ाते हुए अंदाज में कई कदम पीछे हटता चला गया। इससे पहले कि वो संभलता उसी लम्हे उसके सर के साथ एक गन की नौल लगी। तुम धांबा नहीं हो, बोलो कौन हो तुम? सरदार कोबला की गिड़ाती आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तारीकी में भी देखने की सलाहियत रखता हो और उसने इमरान को देख लिया हो। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने नावल के चौथे हिस्से का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं